Thank you so much. Ladies and gentlemen, every journey of learning begins with the divine blessings of Goddess Saraswati. As we commence today's event, let us unite in prayer through Saraswati Vandana, presented to you by Ms. Niharika Meher, a Hindustani classical trained singer and live show performer. Check. Hello. या कुन्देन्दुतुषारः रथवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभुदिवी देवै सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती मे शेषजाड्यापहा शुक्लं ब्रह्मविचारसार परमा आद्यां जगद्व्यापिनी वीणा पुस्तकधारिणी अभयदा जाड्यान्धकारापहा हस्ते स्फटिकमालिकां विदधती पद्मासने संस्थिता वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिं प्रदा शारदा नाद ब्रह्ममयि जय वागीश्वरी नाद ब्रह्ममयि जय वागीश्वरी शरणं ते गच्छामः जय जय हे भगवती सुरभारती तव चरणों प्रणमामः जय जय हे भगवती सुरभारती तव चरणों प्रणमामः त्वमसि शरणं
चरणों प्रणमामः। जय जय हे भगवति सुरभारती, तव चरणों प्रणमामः। तव चरणों प्रणमामः। तव चरणों प्रणमामः। धन्यवाद। Thank you so much for that lovely rendition. May I now request the resident editor, New Indian Express, Bhubaneswar, Mr. Sibha Mahanti, to present the welcome address. Esteemed Chief Guest, Honorable Chief Minister of Odisha, Sri Mohan Charan Maji, Editorial Director of the New Indian Express, Sri Prabhu Chawla, CEO of the New Indian Express Group, Ms. Lakshmi Menon, distinguished guests, speakers and participants. I extend a very warm and hearty welcome to each one of you to the 13th edition of the Odisha Literary Festival. It is indeed a privilege and a moment of pride for us to have with us our Honorable Chief Minister, Sri Mohan Charan Maji, who has graciously accepted our invitation to inaugurate this year's festival. Sir, your presence today not only adds great significance to this occasion, but also inspires us to celebrate Odisha's rich literary heritage and its promising future with renewed energy and purpose. Over the years, the OLF has earned a unique place in the cultural life of Odisha. It is not just a festival of books and writers, it's a platform where literature, art, and ideas converge and flourish. Today, OLF has become one of the most important cultural events of our state, something that Odisha takes pride in presenting to the whole country. Odisha has always been known for its rich literary and artistic heritage and made a remarkable contribution to India's cultural identity. OLF has strived to build on that legacy and evolve into a platform where tradition meets the contemporary, connecting the past with the present and charting a course for the future. This year, our theme, Notes from the Field, New Narratives, Living Realities, is both timely and meaningful. Literature and art are not just imagination and creative expression, they genuinely reflect the experiences of people and the ground realities. They are the notes from the field, real, raw, and powerful. The expressions, be it in alphabets, strokes, rhythms, or musical notes, each gives birth to a narrative that has always had the power to shape realities. It can emerge from the most commonplace, like a farmer's field, a tribal household, a poor man on the street, but stir the human consciousness into reflection and action. Over the 2 days, beginning today, the OLF spanning 16 sessions over 15 hours with 30 speakers, all legends and distinguished personalities from varied fields of literature, art, music, and arts will bring you to the notes from the field through their works and experiences. Our Honorable Chief Minister, Sri Mohan Charan Maji, is such a powerful story in himself. His rise from the humble beginnings in one of the most backward tribal villages to the highest office of the state encapsulates so many narratives within it. His struggles, his determination to succeed, his commitment to the people, and exemplary sense of service portray a narrative of hope and optimism. He inspires many. Sir, I once again welcome you to the Odisha Literary Festival. Apananko upasthiti pai ame krutagya. The OLF this year has brought together an unparalleled combination of leading writers, artists, actors, performers, intellectuals, political thinkers to create a space for dialogue, challenge ideas, and create new perspectives. In whole, we will be celebrating the diversity of thought and creativity over these 2 days. Before I finish, I would like to take this moment to acknowledge the people who have made OLF possible. Our chairman, Sri Manoj Kumar Santhalia, for all his support. Our CEO, Ms. Lakshmi Menon, and her dedicated team deserve special thanks for their tireless effort in putting together this festival. Our group editor, Ms. Shantwana Bhattacharya, for all the support. Last but not the least, our editorial director, Sri Prabhu Chawla, who has been the guiding force behind this festival since its beginning. His vision, his commitment, the youthful exuberance that he has shown all through all 13 years have ensured that OLF continues to grow stronger each year. I thank him from the core of our heart. We are deeply grateful to our patrons, our sponsors, and not the least, the much engaging audience of Bhubaneswar, whose support and enthusiasm have turned OLF into a landmark. Without your support, this journey wouldn't be possible. Our hearts are filled
because of the love and kind of excitement that Bhubaneswar has showered on us. I thank you again, and I welcome you all of you to OLF 2025. Thank you, sir. Thank you so much, Mr. Mahanti, for the warm welcome. Ladies and gentlemen, it's a matter of great pride and prestige for us that the Honorable Chief Minister of Odisha, Shri Mohan Charan Majhi ji, has graced this platform today as the chief guest. From nurturing young minds as a teacher in Saraswati Shishu Mandir to serving as a Sarpanch, to becoming a fourth-time MLA and now leading the state as its chief minister, his journey is a shining reflection of the power of democracy and people's trust. He has brought to governance the sensibilities of a teacher and the dedication of a grassroots leader, ensuring every policy carries the imprint of inclusivity and the voice of the common people. Under his dynamic leadership, Odisha is charting a transformative path of growth guided by Vision 2036 and Vision 2047, a vision that he has envisaged, a vision that blends people-centric development with the aspiration of Viksit Bharat. A true son of the soil and the people's chief minister, he stands as a symbol of hope, progress and purpose for Odisha's future. मान्यवर मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण माझी ओडिया अस्मिता, ओडिशार समग्र समावेशी विकास एवं ओडिशार प्रगतिशील भविष्यतर नायक। मु तांको वर्तमान अनुरोध करिबी तांकर अभिभाषण पाई जोरदार करताली सह तांकर स्वागत करिबा। लेट्स वेलकम हिम विथ अ राउंड ऑफ अप्लॉज। जय जगन्नाथ। न्यू इंडियन एक्सप्रेस रो एडिटोरियल डायरेक्टर श्री प्रभु चावला जी, द रेसिडेंट एडिटर इंडियन एक्सप्रेस भुवनेश्वर श्री शिव महांती महाशय, न्यू इंडियन एक्सप्रेस रो संपादक रिपोर्टर बंधुगण, एठारे उपस्थित लेखक, साहित्यिक एवं शिक्षाविदगण एवं गणमाध्यम प्रतिनिधि वृंद, आज यही भाषा और साहित्य कार्यक्रम को आपण मानकु स्वागत। थैंक यू न्यू इंडियन एक्सप्रेस एंड प्रभु चावला जी फॉर इनवाइटिंग मी टू दिस लिटरल फेस्टिवल। वेलकम टू द लैंड ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ। आज ये मोर परम सौभाग्य एभली एक लिटराल फेस्टिवल रे मते आज अतिथि हिसाब रे इंडियन एक्सप्रेस परिवार तरफ सुजोग दिया जाइछि। निश्चित भाव रे मु इंडियन एक्सप्रेस रो परिवार को धन्यवाद ज्ञापन करुछि। भाषा मानव सभ्यतार प्राण केन्द्र। ये निश्चित भाव रे आमे जानिछंती। यही न्यू इंडियन एक्सप्रेस पक्षरु जो यही लिटरारी फेस्टिवल ये कार्यक्रम आज 13 वर्ष हला ये कंटिन्यूअसली आयोजित करा जाई आसुअछि और निश्चित भाव रे चलित वर्ष ये 13तम। मु न्यू इंडियन एक्सप्रेस रो आयोजक मानंकु शुभेच्छा मानंकु समस्त को अभिनंदन जनाउछि। लेखक, साहित्यिक एवं साहित्य क्षेत्र में रुचि रखुवा व्यक्ति मानकर पई निश्चित भाव रे यह गोटिए एक सुंदर प्लाटफॉर्म, एक बहुत बड़ आम समस्त मध्य एक अवसर। यही प्लाटफॉर्म भाषा और साहित्य संपर्क रे भाव और ज्ञानर आदान प्रदान क्षेत्र रे निश्चित भाव रे एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करी आसुअछि।
भाषा मानव सभ्यतार प्राणकेन्द्र एक कथा मु आपमानक पाखरे पुनर्बार थरे रखुची। इंडो यूरोपीय भाषा परिवार भारतीय आर्य भाषा शाखार एक वरिष्ठ सुदूर प्राचीन भाषा होची आम ओडिया भाषा। ख्रीष्टपूर्व प्रथम शताब्दी समयर खारबेलଙ୍କ हाथीगुम्फा शिलालिपि तृतीय शताब्दीर धौड़ी और जौगड़ बौद्धपीठर विभिन्न उपादान बहु प्राचीन अभिलेख ताम्रफलक अनुशासन पुराणा पोथी और विभिन्न तालपत्र खेदारु आम ओडिया भाषा केते पुराणा ता निश्चित भाव में प्रमाणित करुछि एवं आम भाषा केते समृद्ध ताहा आज आमको मध्य एक ओडिया अस्मितार आमर स्थिति को मध्य आज प्रमाणित करुछि जे आमे केते दृढ़तार सहित आज आमे आम भाषा को नहीं आमे बंचीछु। 2014 मसीह ओडिया भाषा शास्त्रीय भाषार मान्यता अर्जन करने फल आम भाषार प्राचीनता एवं तार समृद्धता विषय प्रमाणित हो सारी। प्राय 3000 वर्षर ए ऐतिहासिकता उपरे प्रतिष्ठित ओडिया भाषार लिपि ब्राह्मी लिपिरु तार अस्तित्व अर्जन करिछि। आम भाषा ओडिया ये मध्य विभिन्न आंचलिक भाषा और जनजातिंकर भाषा द्वारा बहु भाव उपकृत एवं उत्साहित एवं समृद्धि मध्य लाभ करिछि। तेणु ओडिया भाषार व्यापक प्रचलन ओडिया भाषार समृद्धि और संरक्षण सकाशे सबु महलरे सबु वर्गरे सबु स्थान यह उपरे उद्यम निरंतर भाव में जारी रही। ओडिया भाषा को ज्ञान भंडार भाषा भाव में व्यवहार करने दिगरे ताहा मध्य सब प्रकार चेष्टा चली। 2020 मसीह जातीय शिक्षानीति 2020 जितेबले कार्यकारी करागला ओडिशा रे कार्यकारी करिबारे विलंब निश्चित भाव में होईछि। गत 5 वर्ष पर्यंत ओडिशा रे जातीय शिक्षानीति ये कार्यक्रम आरंभ हो पारि नथिला। तत्कालीन सरकार लागू करि नथिले किंतु आम सरकार आसिला परे आमे तुरंत यहाकू विचार विमर्श करिके लागू करिछु। केंद्र सहित तांको सहयोग रे ये कार्यक्रम को आमे बहुत आगको नबा पाई मध्य सबु दिगर रास्ता खोली देइछु। आउ ये जातीय शिक्षानीति 2020 अनुजाई केंद्र सरकार विभिन्न पाठ्यपुस्तक एपरिकी आमे डाक्तरी पाठ पढ़ा केवल इंग्राजी रे एबे ए जातीय शिक्षानीति 2020 आसवा परे एबे डाक्तरी छात्र माने मध्य पाठ पढ़िबे ओडिया रे। इंजीनियरिंग पाठ एवं अन्यान्य जेते सब वृत्तिगत विद्या अछि ताहा मध्य ओडिया भाषा रे समस्त प्रकार पाठ्यपुस्तक को आमे ओडिया रे ताहार कार्यकारी करिया पई चेष्टित अछु। ओडिया साहित्य भाषा याकू धरी क्रमोन्नति धीरे धीरे आमे अग्रसर होउछंती। तेबे जदि ओडिया हिस्ट्री बा ओडिया भाषार इतिहास को आमे अनुध्यान करिबा ताहले केबे ओडिया ताहार रुधिमंत हो पारिथिला एक कथा जदि आमे इतिहास को टिके फेरी जिबा ताहले निश्चित भाव में शूद्रमुनि सारला दास तांको पूर्वरु ओडिया लोक साहित्य अभिलेख साहित्य और लिखित साहित्य मध्य रही आसी अछि एवं ता सहित लोकगीत लोक कहानी लोक नाटक विभिन्न अभिलेख ओडिया भाषा को रुधिमंत जेतेबेले तांको द्वारा करा जाई पारिछि। ठीक चर्या साहित्य बा सिद्ध साहित्य जाको कहा जाउछि प्रथम लिखित साहित्य भावे आम ओडिया रे ताको ग्रहण करा जाइछि। आलोचक मानक मतरे ख्रीष्टीय सप्तम शताब्दी द्वादश शताब्दी मध्य रचित ये सिद्ध साहित्य गुड़िकरे ओडिया भाषार प्राधान्य लाभ करिथिला
विभिन्न व्रत कथा चौतीसा कोइली गीत रचना सांग को आमर सबुठारु पुराणा पांजी मादला पांजी आम साहित्य भाषार ये अग्रगति को निश्चित भाव में ये सूचित करुछि। तापर जेतेबेले शूद्रमुनि सरला दासंकर ओडिया महाभारत एवं लक्ष्मी पुराण आदि रचना जगु ओडिया साहित्यर पृष्ठभूमि सुदृढ़ हो पारिछि। सारला महाभारत आम साहित्यर एक निश्चित भाव में एक अमूल्य संपद। सारलांक जुग को आम साहित्यर एक महान जुग भाव मध्य वर्णना करा जाइछि। सारलांक परवर्ती समय पंचसखा साहित्यर विकास लाभ करिथिला। पंचसखांक रचना रे आध्यात्मिकता दर्शन सामाजिक सांस्कृतिक दिग गुड़िक विशेष भाव में आलोचित होइछि एवं लक्ष्मी पुराण निश्चित भाव में महिला सशक्तिकरण नहीं यह एक श्रेष्ठ रचना मध्य कहा जाई पारे। अन्य पक्षरे अति बड़ी जगन्नाथ दासंकर भागवत यह आज ओडिशा रे घरे घरे परिचित। यह एपरी एक ग्रंथ जो ओडिशावासींकर स्वाभिमान और अस्मिता को आज मध्य उजागर कर रखी आसुअछि। प्रति ग्राम रे भागवत टुंगी ओडिया सांस्कृतिक आध्यात्मिक जागरण रे यह सहायक हो पारिछि। भागवत ग्रंथर जन्मदिन मध्य पालन करा जिबा निश्चित भाव में यह एभली एक विरल घटना जहाँ विश्वर कौन सी ठारे मध्य आज पर्यंत यार लक्षण किंवा लक्ष्य देखा जाए नहीं। पंचसखांकर साहित्य आंदोलन समय अनेक कवि अनेक पुराण रचना करिसंती। यहा परे रीति जुगर कवि लेखक माने ओडिया साहित्य को धीरे धीरे आधुनिकता देवा सहित मध्य तार दिग्दर्शन से दे आसुअछंती। सेहीपरि परवर्ती समय चंपू पदावली इत्यादि ओडिया साहित्य को मध्य ये समृद्ध करिछि। ओडिया सांस्कृतिक जीवनधारा रे और विदेशी शिक्षा प्रभाव में आरंभ होइतबा नगजार जागरण जेतेबेले छापाखाना प्रतिष्ठा करागला एवं विभिन्न पत्र पत्रिका मध्य धीरे धीरे प्रकाशन आरंभ होला सेते बेलको अनेक लोक आम ओडिया भाषा ओडिया साहित्य प्रति धीरे धीरे सेमाने यहा उपरे आक्रमण आरंभ करथिले एवं ए समय रे मध्य किछि लोक कहउथिले ओडिया एक स्वतंत्र भाषा नय। जो माने कहउथिले ओडिया एक स्वतंत्र भाषा नय बोली कहउथिले सेमानंको भूल प्रमाणित करिकि ओडिया भाषार आमर जो माने साहित्य रथी महारथी भाषा साहित्यर उन्नति पाई जो माने संग्राम करिथिले एवं सेमाने प्रमाणित करिथिले जे ओडिया भाषा एक स्वतंत्र एवं तार साहित्य स्वतंत्र आउ ताको प्रमाणित करथिले ताहा आज अतुलनीय होइकि आम पाखरे रहिछि। परवर्ती पर्याय सन्थ कवि भीम भोई कविवर राजनाथ राय भक्त कवि मधुसूदन राव व्यास कवि फकीरमोहन सेनापति स्वभावी कवि गंगाधर मेहेर एवं पल्ली कवि नंदकिशोर बलंक इत्यादि जो माने आमर लेखनी अमर लेखनी जो साहित्य सृष्टि होइतला ताहा आम भाषार एक अमूल्य संपद होइकरी रहिछि। जो सन्थ कवि भीम भोईंकर ये समाजपति ये संसारपति जेभली भाव में तांकर कवि काव्य जेभली भाव से करथिले बजीवन पछे नर्क पड़ी थाउ जगत उद्धार हो एभली लेखा भारत वर्ष रे कौन सी काव्य रे लेखा जाए नहीं। प्राणी को आर तो दुख अप्रमत देखु देखु केबा सहु ये निश्चित भाव में आमे आमर साहित्य केते रुधिमंत एथिरु प्रमाणित होछि। यहाँ पर सत्यवादी जुगरे सत्यवादी साहित्य पंडित गोपबंधु दास गोदावरीश मिश्र पंडित नीलकंठ इत्यादि लेखनी समृद्ध होइछि। जातीयतावादी चेतना और प्रगतिवादी चिंताधारा सेमानकर लेखारे निश्चित भाव में एथिरे प्रतिफलित होइछि। स्वाधीनता पूर्ववर्ती और परवर्ती समय अनेक लेखक और साहित्यक समसामयिक समय सामाजिक समस्या गुड़िक उपरे आलोकपात करी समाने मध्य गभीर भाव में तार प्रभाव पकई सारी सेथिरे
गोटे कथा हूँ जितेबले व्यासकवि फकीरमोहन सेनापति तांकर जो छोटिया गल्पटे लिखिथिले रेवती झील मानकर शिक्षा अधिकार उपरे किभली भाव में गभीर प्रभाव पकईला आम जो माने रेवती पढ़ी समस्ते जानी एवं तांकर सहित केवल ये झील मानकर अधिकार उपरे नुह तांकर सहित जमी जमा संक्रांतीय विभिन्न समस्या ताकू आधार करी 6 माण 8 गुंठ भूमिहीन कृषक मानकर समस्या उपरे मध्य समाज को ये लेखा केते प्रभावित करि पारिथिला तांकर लेखार ये साहित्यर शक्ति बा तांकर वरिष्ठ पराकाष्ठारू आम जानीपारुछंती। आधुनिक जुगरे प्रतिभा रायंकर याज्ञसेनी नारी अधिकार को सब्यस्त करने एक निश्चित भाव में प्रभावशाली उपन्यास बोली कह जाई परिबो। समाजर शोषित वंचित और अवहेलित वर्गर लोकमानकर पई जो साहित्य सृष्टि हुए ताहा समाजर परिवर्तन रे या निश्चित भाव में सहायक हुए। यह एक नुआ सामाजिक प्रकरण सृष्टि करिवार गुरुत्वपूर्ण भूमिका निश्चित भाव में ग्रहण करिथाय। तेणु साहित्य केवल एक रचनात्मक केवल शैली नुह, यह सामाजिक परिवर्तनर एक बलिष्ठ माध्यम मध्य। ओडिया साहित्यर आधुनिक जुगर अध्याय शताधिक कवि लेखक साहित्यक सेमानंकर योगदान को सशक्त करिछि। सेथिरे उपन्यास नाटक गल्प कविता रम्य रचना ललित निबंध सांगक अनुवादर मध्य आधुनिक ओडिया साहित्य को ये निश्चित भाव में रधिमंत करि पारिछि। तेबे साहित्य हो बा शिक्षा हो आम प्रथम परिचय होउछि आम भाषा। ओडिया आम मुख्य भाषा हेले मध्य आज आम ओडिशारे आहुरी 62 वर्गर आदिवासी जो माने अछंती सेमानंकर मध्य स्वतंत्र भाषा अछि, तांकर मध्य एक स्वतंत्र संस्कृति अछि। सांताली भाषा रे कहूतवा लोके केवल ओडिशा रे नुहंती, ओडिशा बाहर मध्य अछंती। सांताली भाषार प्रतिष्ठाता गुरु गमके पंडित रघुनाथ मुर्मू जी की ऑल चिकीर प्रतिष्ठाता उद्यम सांताली भाषार स्वतंत्र जो ऑल चिकी आज बहुत लोकप्रियता नहीं पारिछि एवं सांताली भाषा संविधान 8म शेड्यूल रे मध्य स्थान पाइछि। यह द्वारा सांताली भाषार साहित्य रे विकासर एक नुआ संभावना सृष्टि होइछि। आउ सेथिपाई एबे जेतेबेले जातीय पाठ्यक्रम ढांचा बा एनसीएफ जो आधार रे ओडिशा रे सब भाषा को तांकर भावना सहित बुझिकरी से भाषा रे जेतेबेले पाठ पढ़िबार कार्यक्रम आरंभ हुए सेतेबेले आम ओडिशा रे मध्य स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क बा राज्य पाठ्यक्रम ढांचा को आम सरकार आसिला परे ताकू आमे आरंभ करिजु एवं यही ढांचा आम पिलामानकर आवश्यकता अनुसार ओडिशार सभ्यता सांस्कृतिक मूल्यबोध इतिहास ऐतिह्य आमर मातृभाषा एवं भविष्यत आवश्यकता को ध्यान में रखी मध्य स्वतंत्र भाव ताकू प्रस्तुत करा जाउछि। यह द्वारा शिक्षार्थी माने अधिक सृजनशील एवं अस्मिता विषय से निश्चित भाव में सचेतन हो पारे। आदिवासी छात्र छात्री को समानकर भाषा रे शिक्षा आदान प्रदान करने सरकार चेष्टा करुछंती। जेते आदिवासी भाषा अच्छी कथबार्ता होउछंती तांकर संस्कृति अच्छी किंतु तांकर स्क्रिप्ट नहीं। सांताली भाषार आदिवासी भाषा हिसाब से स्क्रिप्ट अच्छी ताकू ऑल चिकी कह जाउछि एवं प्रथम थर करी ऑल चिकी को सांताली भाषा रे पाठ्यपुस्तक रचना करा जाउछि एवं से भाषा रे सेही अंचल थिबा भाषाभाषी लोकन को पाठ पढ़िया पई स्वतंत्रता ये आज दिया जाउछि, तार प्रस्तुति भी चली। अन्य जो आदिवासी भाषा गुड़िक अच्छी जार संस्कृति अच्छी किंतु स्क्रिप्ट नहीं, से भाषा गुड़िक आगामी दिन में से ओडिया स्क्रिप्ट रे बही लेखा किंतु तांको भाषा रे लेखा आ से साहित्य उपर प्राधान्य दि जाए सेमानंकु मध्य पाठ पढ़ारे आगो को नेबा पई रुद्धिमंत करा जिबा पई निष्पत्ति निया जिवो। आउ सेथिपाई आम सरकार आसिला परे गत सेप्टेम्बर मास 5 तारिख रे गुरु दिवसर अवसर रे आमे सेथिपाई एक कार्यक्रम आरंभ करिथिलु निपुण ओडिशा। ये निपुण ओडिशा कार्यक्रम को ठीक गोटे वर्ष होइछि। गतकाली 5 तारिख थिला गुरु दिवस पालन करा जाइछि एवं
ये कार्यक्रम माध्यम आम चलित वर्ष आ गोटे नुआ अभियान आरंभ करूँ सेटा है पढ़िबा गढ़िबा ओडिशा पढ़िबा गढ़िबा ओडिशा ये जेतेबेले आम आरंभ करने जाऊँ यह माध्यम पिला मध्य नियमित और स्वाधीन पठन अभ्यास को प्रोत्साहित यह माध्यम करा जाई पारिबो। तार पुस्तक उन्मोचन करा जाइछि। सरल कहानी पुस्तक माध्यम छोट पिला मध्य पठन एवं बोधगम्यता को यह माध्यम विकसित करा जाई पारिबो। एथि सहित विद्यालय गुड़ी को सुंदर एवं आकर्षणीय पठन स्थान भाव में विकसित करा जिवो। यह एकाधार तीनोटी स्तर में प्रभावित करिवो। भाषा साहित्य और अस्मिता ये प्रक्रिया रे पाठ पढ़ा जिते पाठ पढ़ी पिला सबुबले यही तीनोटी विषय प्रति सबुबले सचेतन रहिबो एवं शिक्षक माने भी से प्रति ध्यान दे पारिबे। सबुठारु बड़ कथा होची आमर मूल कथा होची आमर अस्मिता। आमे जदि आम मातृभूमि को भल पाइबा, मातृभाषा को भल पाइबा, निज संस्कृति को भल पाइबा एवं निजर सबु ओडियार अस्मिता को नहीं आमर खाद्य चलणी परंपरा ताकू प्राधान्य जदि आम दे पारिबा ताले निश्चित भाव रे आमर विकास निश्चित भाव रे अवश्यम्भावी। आपण यूरोप को देखंतु, अमेरिका को देखंतु, तांकर भाषा साहित्य प्रति समाने केते सचेतन रहउछंती, किंतु आमे धीरे धीरे आमर संस्कृति परंपरा भाषा साहित्य को छाड़ी आमे पाश्चात्य आड़ को धीरे धीरे से आड़ को अग्रसर होउछंती। किंतु सेमाने कुआडे जाउछंती, सेमाने आम आड़ को आज आसुछंती, किंतु आमे आमर भाषा साहित्य संस्कृति को रुधिमंत करने बदल में ताकू आम छाड़ी दौरान। एणु ये प्रति आज आमको ये जो गोटे बड़ प्लाटफर्म आज जो न्यू इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जो आज तरफ करा जाइए मु निश्चित भाव में कृतज्ञता व्यक्त करुछि जे 13 वर्ष धरी यही प्लाटफर्म को नियमित भाव उज्जीवित कर आसुछंती। आम अस्मिता प्रति सचेतन होबारे यह एक बहुत बड़ प्लाटफर्म कह द न्यू इंडिया एक्सप्रेस ताको ग्रुप तरफ जो करा जाउछि। आप मैंने जानिथिबे गत 3 तारीख रे दिल्ली ठारे दिल्ली रो सुषमा स्वराज भवन ठारे 56तम जीएसटी काउंसिल बैठक आयोजन करा जाइथिला। मु निजे जोग देइथिले अर्थमंत्री हिसाब रे, मुख्यमंत्री हिसाब रे। आप मैंने जानती मध्यवित्त एवं गरीब लोकंकर जो व्यवहार करथुवा प्राय समस्त द्रव्य उपरे जीएसटी को कम करा जाइछि एवं संपूर्ण भाव में किसी क्षेत्र में छाड़ मध्य करा जाइछि। यह एक ऐतिहासिक निष्पत्ति निश्चय देशर कंजप्शन वृद्धि और व्यावसायिक वाणिज्य वृद्धि क्षेत्र में यह निष्पत्ति एक जुगान्तकारी सब्यस्त हम। जो विदेशी शक्ति माने विभिन्न बहाना भारतर अभिवृद्धि को रोकवा चाहते एवं से तारीफ पर तारीफ बसैया चाहते से माने केबे सफल हेबे नहीं। यार प्रमाण होची जे चलित वर्ष रे जो धार्य करा जाइथिबा हमर देशर अभिवृद्धि ताहा उपरे गोटे जो अभिवृद्धि आम पाखरे आसिक ता रिजल्ट पहुँचला जहाँ टार्गेट करा जाइथिला ता ठारू मध्ये अधिक देशर अभिवृद्धि 7.8% आज पहुँची पारी। देशर अर्थनैतिक अभिवृद्धि पाई आज मोदीजी जो पदक्षेप नौछंती ताहा निश्चित भाव में आमर आर्थिक अस्मिता को मध्य सुदृढ़ करिबारे एक यह वैप्लविक पदक्षेप बोली कह जाई परिबो। एठारे मु अस्मितार कथा को बारंबार कहूछि कारण अस्मिता ही समस्त विकासर ये होछि मूल मंत्र। आम सरकार आसिबा परे अस्मितार सुरक्षा पाई अनेक पदक्षेप नहीं आइछंती। आमे उत्कल दिवस को उत्कल गौरव मधुसूदन दासंकर जन्मपीठरे पालन करुछंती। समस्त महापुरुषंकर जन्मपीठ को विकसित करने योजनाबद्ध भाव में आम सरकार कार्यक्रम नहीं एवं आमे आहुरी गोटे स्वतंत्रता देइछु। उत्कल दिवस रु ओडिया नवा वर्ष पर्यंत जो 14 दिन अच्छी से 14 दिन समय को
ଓଡ଼ିଆ ପକ୍ଷ ଭାବେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମ ସଂସ୍କୃତିର ଗୋଟିଏ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗ ସହିତ ଯୋଡ଼ା ଯାଇ ଏ ଉତ୍ସବକୁ ଆମେ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ 14 ଦିନ ଧରି ପାଳନ କରୁଛୁ। ଇଏ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବାରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଆଜି ସହାୟକ ହୋଇପାରିଛି। କଟକର ବାଲିଯାତ୍ରା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ହେଉଥିବା ବାଲିଯାତ୍ରା, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଉଥିବା ବରଗଡ଼ର ଧନୁଯାତ୍ରା, ଏଭଳି ଯେଉଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଜାତୀୟ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରସାରିତ କରାଯାଇପାରିବ ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆମ ସରକାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ତାକୁ ଫୋକସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ଆମ ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରଥମ ବର୍ଷର ହିଁ ନେବା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଏହା ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ମାତ୍ର, କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଆମକୁ ଆହୁରି ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ଅସ୍ମିତା ସହିତ ଆମେ ଯଦି ସମସ୍ତେ ଯୋଡ଼ି ହେବା ନାହିଁ ତାହେଲେ ବିକାଶ ମଧ୍ୟ କେବେ ଠିକ୍ ବାଟରେ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ବିକାଶ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କେବେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇପାରିବା ନାହିଁ। ଏଣୁ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡ଼ି ହେବ, ଆମେ ତାକୁ ନେଇକରି ହିଁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ଗତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସର ଅବସରରେ ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଜୀ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ଭାରତ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର ସହିତ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆମର ଭାଷା ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆମକୁ ଆହୁରି ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ବିକାଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଗତ 3 ତାରିଖରେ ଯେତେବେଳେ GSTର କାଉନସିଲ୍ ହୋଇଥିଲା, ଠିକ୍ ସେ ସମୟରେ ତା ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଚାଲୁଥିଲା ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ୟଶୋଭୂମିରେ ସେମିକନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ 2025। ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଯେଉଁ ପ୍ରକଳ୍ପ ବା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ଆଜି ଯିଏ ନେଇପାରିବ, ଯାହା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ, ସିଏ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ସିଏ ହୋଇପାରିବ। ଆଉ ସେହି ଆଧାରରେ ଏ ସେମିକନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ 2025ର ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଆୟୋଜନ ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଜୀ ଯେତେବେଳେ ୟଶୋଭୂମିରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଲଞ୍ଚ କଲେ, ବଡ଼ ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଏବଂ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯେ ଭାରତବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଜଣେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିମନ୍ତ୍ରିତ ହିସାବରେ ଡକାଯାଇଥିଲା, ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ, ଏବଂ ସେଠି ଦିଲ୍ଲୀର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେବଳ ହୋଷ୍ଟ ହିସାବରେ ସେଠି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଆଉ ଏଭଳି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯେତେବେଳେ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଲଞ୍ଚ କରାଗଲା, ସେତେବେଳେ ଆଧୁନିକ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ଗୋଟେ କୁହାଗଲା ଇଏ ହେଉଛି ଆତ୍ମନିର୍ଭରତାର ଏକ ଆୟମାରମ୍ଭ ହେଲା ବୋଲି। ଖୁସିର କଥା, ଦେଶର ପ୍ରଥମ ଚିପ୍ସ ନିର୍ମାଣ ଯେଉଁ କରାଯାଇଛି ତାହା ଆମ ନିଟ୍ର ରାଉରକେଲାର ଜଣେ ଛାତ୍ରଙ୍କର ଗ୍ରୁପ ଦ୍ୱାରା ଏହା କରାଯାଇପାରିଛି। ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ପାରଲା ମହାରାଜା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜର ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଚିପ୍ସ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ନିର୍ମାଣ କରିପାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଏହାର 3ଟି ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକିରି IT ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା। ଇଏ ଛୋଟ କଥା ନୁହଁ। ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ପିଲା ନିଟ୍ ରାଉରକେଲା ହେଉ ବା ଆମର ମହାରାଜା ପାରଲା ମହାରାଜା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ ହେଉ, ଯେଉଁଠିକାର ଛାତ୍ରମାନେ ଏହାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି, ଆଜି ସେମାନେ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହା ସାକାର ହେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛି। ଏଥିରେ ଖୁସିର କଥା ଯେ ଗତ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରେ ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ରର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା, ସେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ଯେଉଁ 4ଟି ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ସାଂସନ୍ ହୋଇଥିଲା, ଅନୁମୋଦନ ଲାଭ କରିଥିଲା, ତା ଭିତରୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାକୁ 2ଟି ଆମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଇଏ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା ଆମ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ। ଏବଂ ସେଥିରେ 4000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କୋଟି ଟଙ୍କା ଏ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଛି। ସେମିକନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ये जो कार्यक्रम आमको गोटे बहुत बड़ आगामी दिन में ओडिशा को बड़ माइलेज देव। परवर्ती पर्यायर ओडिशार पेविलियन को आम उद्घाटन करिछु एवं प्राय 20 रु अधिक विश्वर विभिन्न प्रांतर आसीथिबा विभिन्न देशर आसीथिबा कैलिफोर्निया रु आपंकर मालयेशिया रु साउथ कोरिया रु जापान रु एभली भाव में अनेक देशर आसीथिबा तांको टीम एवं
कंपानी माने आम सहित सीधा सड़क रोड शोरे 1-to-1 कथबार्ता हेले मु तांकर सहित मो टीम सहित कथबार्ता करली एवं समाने ओडिशा रे प्रोजेक्ट आहुरी अधिक करबा पई सम्मति प्रदान करिसंती एवं खुशीर कथा जे समानक भितर दुईटी कंपानी समाने एमओयू से तत्क्षणात साइन करले दस्तखत करले एवं सेतिरे मध्य दुईटी प्रकल्प रे 2600 कोटी टंकार विनियोग हेबा पई सुनिश्चित करिके समाने जाइछंती। पूर्वर RIR पावर इलेक्ट्रोनिक्स गोटे सिलिकॉन कार्बाइड वेफर फैब्रिकेशन यूनिट मध्य से प्रतिष्ठा करुछि। आसंता वर्षे 2 वर्ष मध्य ओडिशा सेमीकंडक्टर क्षेत्र में देशर एक पावर हाउस बनिया पे जाउछि। आम सरकार आसिबा परे ओडिशा अति त्वरित गति रे विकासर मार्ग रे अग्रसर होउछि। 17 लाख कोटी टंकार निवेश शिल्पायन क्षेत्र रे एवं 13 लाख नियुक्ति पाई मार्ग प्रस्तुत आज हो सारी एवं सेथिरे 2 लाख कोटी टंकार आमे ग्राउंड ब्रेकिंग कर सारीचु। इतिरे विशेष करिकी महिला कृषक मानकर सामाजिक सुरक्षा एवं तांकर विकास को आमे आखि आगरे रखी तांकर विकास पाई सुभद्रा एवं समृद्ध कृषक योजना परि कार्यक्रम मध्य समानक जीवन रे ये कार्यक्रम कार्यकारी करा जिबा द्वारा आज गोटे व्यापक परिवर्तन होबार लक्षण देखा देछि एवं परिवर्तन मध्य आनी पारिछि। सेथिरे महिला मानक क्षेत्र में जिते बड़े लाखपति दीदीर कथा को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आह्वान देते आम लाखपति दीदी बनईबारे सुभद्रा योजनार प्रभाव कारण आम देश में 17 लाख लाखपति दीदी तैयारी माने सेमान को लाखपति दीदी बनई पारिछु जो थे कि भारत वर्ष में प्रथम स्थान अधिकार करिवार सौभाग्य मध्य ओडिशा एथिरे लाभ करि पारिछि। भविष्य प्रति सामाने एवं पूर्व अपेक्षा आहरी अधिक आशावादी एवं आत्मविश्वासी सहित काम करने बहुत बड़ गोटे प्लाटफर्म आज आसीपारी। गत 14-15 मास धरी आम सरकार नूतन कार्यक्रम विकासर एक नुआ दिग आड़ को गति करुछि। आमर कार्यक्रम समस्त मध्य आत्मविश्वास आज स्वाभिमान सृष्टि करि पारिछि। एही आत्मविश्वास ओडिया अस्मिता को साथी रे नहीं आमे आउ 2 पाद आगु को जीवाई 2036 रे जो विजन डॉक्यूमेंट आम प्रस्तुत करिछु समृद्ध ओडिशा तथा विकसित ओडिशा एवं मोदीजींकर जो आह्वान अच्छी विकसित भारत 2047 रे सेतिरे ओडिशार बहुत बड़ा भूमिका बा योगदान देवार कार्यक्रम मध्य रही सारी एवं निजे मोदीजी मध्य विश्वास एवं भरोसा दे ओडिशा को फोकस करुचंती संभावना राज्य हिसाब रे अनेक समय आमको गुरुत्व आरोप करुचंती दिग्दर्शन मध्य देइछंती और विकास क्षेत्र में प्रत्येक अस्मिता और आत्मनिर्भरतार एक बड़ प्रभाव आज ओडिशा उपरे ओडियांको उपरे पड़िबारे आरंभ होइछि। बंधुगण विकासर प्रक्रिया उपरे मु सम्यक तथ्य उपस्थापना करली कारण ये मौलिकता यार मौलिकता एक साहित्य कार्यक्रम माध्यम रे साहित्य हेउछि समाजर दर्पण समाज जीवन व्यक्ति चरित्र व्यवस्था को नहीं निश्चित भाव में साहित्य सृष्टि होता है। जड़े सत् साहित्यक समाजर अघोषित व्यवस्थापक कारण से ही समाजर संस्कार संशोधन गुणात्मक परिवर्तन और मानविकतार प्रतिष्ठा पाई सी ही आगबर होगी आसी था एवं ता कलम उन्नरे तार शक्ति को से प्रदर्शन करी लोकों पाखे पहुँचाई पारि थाए। सारा देश रे यही एवं आम ओडिशा रे जो परिवर्तनर गोटे आज लहर देखापी आसूची सबु क्षेत्र में परिवर्तन आपण माने भी अनुभव करिपारुथिबे। सेथिपाई टेक्नोलोजी क्षेत्र में गोटे विराट जो परिवर्तन होउची आज आमर चिराचरित सामाजिक चलनी रे व्यापक भाव में यह एक बड़ परिवर्तन आज आनी देछि। तेणु साहित्य रे ये परिवर्तन प्रतिफलित मध्य हब बोली मु निश्चित भाव में आशा करी। आम समय रे साहित्यक मानकर आगरे बहुत बड़ गोटे चैलेंज अच्छी आह्वान अच्छी प्रतिकूलता को लंघन करी अव्यवस्था को विरोध करी संस्कार और सांस्कृतिक चेतनार समर्थन करी सर्वोपरि सत्य शिव सुंदरर जयगान करवा हेउछि आजिर साहित्यिकंकर आमर बड़ आभिमुख्य। मोर आशा आमर साहित्यिक माने ये दिगरे यथेष्ट
ଉନ୍ମୁଖ ହେବେ। ସାହିତ୍ୟ ଉତ୍ସବର ଏପରି ସୁଯୋଗମାନ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଯେଉଁଠାରେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାରୁ ଲେଖକମାନେ ଯୋଗ ଦେଇ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ମତ ବିନିମୟ କରିବା ସହିତ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ସନ୍ଧାନରେ ସେମାନେ ଉତ୍ସାହିତ ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ମୋର ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ଏପରି ଉତ୍ସବ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିବା ସହିତ ସାହିତ୍ୟର ସାମଗ୍ରିକ ଜୟଯାତ୍ରାରେ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସହାୟକ ହୋଇପାରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। मान्यवर मुख्यमंत्री प्रेरणादायी अभिभाषण पर अशेष धन्यवाद। अब मैं निवेदन करूंगी न्यू इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल डायरेक्टर श्री प्रभु चावला जी से, वो माननीय मुख्यमंत्री के साथ एक विशेष संवाद को अभी आगे बढ़ाए। इट्स नाउ टाइम फॉर अ क्विक one-on-one interaction with our honorable chief minister, sir. Hello. Working, ना? Can you hear me? Yeah, thank you. बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। मैं पहली बार आपसे मिल रहा हूँ। कई साल पहले मिला था जब हाँ पहली बार यहाँ स्टेज पे मिल रहा हूँ। आपके दफ्तर में मिला था मैं, पर कई साल पहले मैं आपके जहाँ आप चर्चा में ज़्यादा थे उस वक़्त, तब भी मैं गया था कवर करने के लिए। काफ़ी परिवर्तन देखा है मैंने आप में, और जब मैंने भाषण जो आपका सुना, आपने स्टेट के ऊपर सारा कवर कर लिया कि बच्चों के लिए क्या क्या कर रहे हैं, लैंग्वेज के लिए क्या कर रहे हैं, लिटरेचर के लिए क्या कर रहे हैं। जब आपने टेक ओवर किया था, आपके दिन में थोड़ा बहुत डर तो होगा कि मैं नवीन पटनायक की जगह आ रहा हूँ तो लोग मेरा उसके साथ मुकाबला करेंगे कि वो अच्छे थे या मैं अच्छा था। तो एक साल लगा आपको कि आपने बता दिया कि आप भी विकास कर सकते हैं। तो क्या वो डर कैसे ख़त्म किया आपने उसको सक्सेसफुल बनने के लिए? देखिए, मैं कभी सरकार में आया नहीं था, कभी मेरा पार्टी में भी सरकार नहीं बनाया था। उड़ीसा में मैं भी कभी मंत्री नहीं बना था, लेकिन ज़रूर मैं राजनीति तक करता था। और जब मैंने राजनीति शुरू किया था, इसी जनरल पॉलिटिक्स में मैंने स्टूडेंट करियर में आया था, तो शायद उड़ीसा में भी कोई कम लोगों की इसी आधार पर राजनीति में आए होंगे। जब मैं +3 सेकेंड ईयर पढ़ाई करता था, इसी टाइम में मैं जनरल पॉलिटिक्स में पॉलिटिक्स कर रहा था। इसलिए मेरा जो पॉलिटिक्स बहुत लंबा समय है। 1997 से 92 से मैंने शुरू किया। मैं स्टूडेंट था इसी समय पे। हमारा कॉलेज का स्टूडेंट सब कॉलेज का छात्र संसद में पॉलिटिक्स कर रहे थे। वहाँ खड़ा हुई थी कोई सेक्रेटरी, ड्रामेटिक सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट। मैंने इसी टाइम में ब्लॉक चेयरमैन होने के नाते मैंने जनरल पॉलिटिक्स में खड़ा हो गया। सर पहले बार चुनाव में मैंने हार गया, लेकिन जैसा भीम तो पहले बार हार चुके थे ना युद्ध में, लेकिन बाद में और कभी हारा नहीं हो। इसलिए मैंने भी पहले हारा था, बाद में मैंने जीतते बाद सरपंच के बाद फिर विधायक और आज मुख्यमंत्री तक। ऐसे में राजनीति का बहुत बड़ा एक्सपीरियंस होता है, प्रतिनिधित्व करना। इसमें सत्ता आए ना आए, लेकिन राजनीति में काम करना और संगठन बनाना, लोगों के साथ संपर्क जोड़ना, यही राजनीति को बहुत मंजिल तक पहुंचा सकता है। मुख्यमंत्री तो पहुंचा दिया आप, वेरी गुड। तो आपका कमिटमेंट बहुत था, परंतु आप शुरू में जैसे आपने कहा कि आप कार्यकर्ता रहे, आप स्टूडेंट पॉलिटिक्स में रहे, पर आपके वहाँ पर एजेंडा जो था उस वक्त, जो पहले था, जैसे संघ से जुड़े हुए थे आप, हिंदूवादी संघ आपका ज़्यादा प्रचार था कि उसमें हिंदुत्व से विकास की तरफ जैसे अभी आए हैं आप, उसकी यात्रा में लोग अभी भी समझते हैं कि आप हिंदूवादी ज़्यादा हैं या विकासवादी ज़्यादा हैं? देखिए, शायद जो भारत में रहता है उसको तो हिंदू ही कहा जाता है, चाहे वो किसी का धर्मावलंबी हो क्यों ना हो, वो तो हिंदू है और भारतीय भी है वो। इसी आधार पर हमारा मिशन पहले तो हमारा राष्ट्रीयता आधार पर हमने राजनीति हमको करना ही पड़ेगा। और मैंने इसी आधार पर, जैसे आप हिंदूवादी बोल सकते हैं, लेकिन देखिए आज मैंने भारतीय जनता पार्टी में काम करने के लिए मैंने पहले ही मेरा सोच था
और जैसे हमारा बहुत बड़ा बड़ा लीडर जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी और कोई सारी नेता इतना अच्छा मेहरबान करते हुए काम कर रहे हैं, परिश्रम करते हुए काम कर रहे हैं लोगों के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, हम क्यों नहीं। इसी आधार पर मैंने आया और आज भी मैंने भारतीय जनता पार्टी को पहले चुनने हुए 2000 में मैंने विधायक भी बना और विधायक बनने के बाद मैंने देखा कि इसी एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है भारतीय जनता पार्टी। इसी आधार पर काम करने में निश्चित रूप से लोगों को सेवा देने के लिए बहुत आसान हो जाएगा और लोगों का अंतर्दय तक मैं जा सकता हूँ और उनके लिए काम करूँगा, चाहे हम सत्ता में है या नहीं, उसी बात का अलग बात है, लेकिन काम करने का बहुत मज़ा आता है भाजपा में। इसलिए मैंने आज काम करते करते फिर 2 बार विधायक बना, फिर 2 बार हार गया, फिर अभी 2 बार जीत के आया हूँ और मुख्यमंत्री के नाते आज मेरे को बहुत बड़ा दायित्व भी मिला है। धन्यवाद बहुत बहुत आपका। मैं जैसे ही बने मुख्यमंत्री, मेरे को लगता है यहाँ पर उड़ीसा में इंडस्ट्री के बारे में बहुत चर्चा होती है, आपने सेमीकंडक्टर के बारे में बहुत कुछ किया जी। तो 2-3 चीज़ें बताइए जो आपको लगता है कि इंडस्ट्रियल स्टेट कैसे बन सकता है। यहाँ पर सब कुछ है, माइंस हैं, मिनरल्स हैं, परंतु उसका प्रयोग यहाँ का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करने के लिए नहीं हो रहा, तो आप कैसे लाएंगे? लोग पहले भी आते थे पर यहाँ उतना विकास नहीं हो रहा जितना इंडस्ट्री में होना चाहिए। नहीं, आपने सही बोले कि हमारा उड़ीसा में माइंस है और जो माइंस हमारा उड़ीसा में कोई दूसरा स्टेट में, प्रदेश में नहीं है। आयरन और है, मैंगनीज है, बॉक्साइट है, क्रोमाइट है, कोल है और कई सारी माइंस भी है। और वहाँ सरकार भी आते थे और दूसरा सरकार आते थे, एक सरकार जाने से फिर दूसरा सरकार, लेकिन शिल्पायन वहाँ ज़्यादा नहीं हो पा रहा था। इसका एक ही कारण है, जो भी सरकार आ रहे हैं उनके इच्छा शक्ति नहीं था। इच्छा शक्ति के बिना कुछ काम किया जा नहीं सकता है, क्योंकि आप देखिए हम तो सरकार आने से ही मेरा प्रबल इच्छा शक्ति है। मैं जिस जिला से आया हूँ, केंदुझर जिला, वो माइंस में भरा हुआ एक जिला है। हमारा माइंस में रेजिंग होता है, ट्रांसपोर्टिंग होते हुए सारी आयरन और चला जाता है, मैंगनीज चला जाता है, लेकिन वहाँ कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई फिनिश प्रोडक्ट करने के लिए एक भी या स्टील प्लांट या कोई फैक्ट्री ऐसा नहीं है। इसलिए मेरा मन भी एक था कि क्यों नहीं शिल्पायन होगा हमारा उड़ीसा में, केंदुझर में क्यों नहीं होगा फिनिश प्रोडक्ट, हम वैल्यू एडेड क्यों नहीं कर पाएंगे। जब मैं 2000 से विधायक बना, इसी आधार पर हमने सरकार को क्वेश्चन करने लगा और करते करते मैंने कैसे हमारा उड़ीसा में ज़्यादा से ज़्यादा शिल्पायन करने के लिए मैं कोशिश तो कर रहा था, लेकिन मेरा शक्ति इतना नहीं था कि मैं क्या कर पाऊँ या नहीं। लेकिन आज मेरे पास ऐसे शक्ति आ गया कि मैं आज करने के लिए जा रहा हूँ। इसी जो शिल्पायन के बारे में हमने जैसे आज उत्कर्ष ओडिशा, मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव के नाते हमने शुरू कर रहे हैं। आज देखिए हमने 17 लाख करोड़ का हमने प्रपोजल लाया और 13 लाख का MOU साइन किया, 13 लाख जॉब सृष्टि भी हमने किया। और इसी करते करते स्वयं प्रधानमंत्री उधर आते हुए हमको दिग्दर्शन दिए और मार्गदर्शन के देने के नाते जैसे एक बहुत बड़ा माहौल बना। जो पोस्को वहाँ एक दिन आया था, साउथ कोरिया का पोस्को, बहुत बड़ा कंपनी जो स्टील बनाने का कंपनी, आज मेरे उड़ीसा में इंडस्ट्री शिल्पायन करने का जो हमने आज मैंने एक न्यू पॉलिसी के नाते काम करने जा रहा हूँ और ग्राउंडिंग भी कर रहा हूँ। पोस्को फिर सोचा कि मैं उड़ीसा या इंडिया कब जाऊँगा, कैसे जाऊँगा, कौन मेरे को लेगा। मैंने बोला मैं लाऊँगा और देखिए मैंने पोस्को को साउथ कोरिया से इंडिया लाया और 72 घंटा तक आपका न्यूज में छपा गया कि पोस्को आ गया इंडिया, पोस्को आ गया। तो मोदी जी भी उनको स्वागत किए और स्वागत करते करते बोले अरे आप तो इंडिया आ गया, बहुत स्वागत की बात है, लेकिन आपने अच्छा किया कि आपने लोग ढूंढ रहे हैं पोस्को इंडिया आ गया तो कहाँ गया, और आपने मोहन माझी आपको बुला लिया, उड़ीसा चीफ मिनिस्टर आ रहा, आप उड़ीसा चले गए। वो भी बात हुआ। मैंने उड़ीसा को पोस्को को ले आया और उड़ीसा के साथ मेरा केवंझर डिस्ट्रिक्ट को भी मैं ले आया। अर्थात मैं चाहता हूँ कि मैं जैसे मेरा जिले में इतना माइंस है आयरन और है, तो क्यों फिनिश प्रोडक्ट नहीं होगा, वैल्यू एडेड इंडस्ट्री नहीं होगा। इसी आधार पर आज हमने
एक डिस्ट्रिक्ट मेरा केंदुझर जिला में नहीं, हर डिस्ट्रिक्ट में माइंस इंडस्ट्री होगा। इसलिए हमने हर डिस्ट्रिक्ट में इंडस्ट्री बनाने के लिए ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर और उनके साथ साथ कैसे किया जाएगा इंडस्ट्री, इसी आधार पर कर रहा हूँ। और जैसे मैंने एमओयू साइन किया और बाद में हमने जो प्रधानमंत्री को बुलाने के बाद फिर लोग पूछने लगे 2 महीने के बाद, आप तो इसे एमओयू साइन कर लिया, लेकिन ग्राउंडिंग कब कर रहे हैं? आप चिंता मत करिए, हमने जा रहा हूँ उसी करने के लिए। 4 जगह में हमने ग्राउंडिंग भी किया, करीब 2 लाख करोड़ की भी आज हमारा ग्राउंडिंग प्रोजेक्ट शुरू हो गया और मैं पीछे नहीं हटने वाला हूँ, बहुत आगे बढ़ने वाला। जैसे सेमीकंडक्टर आज बारे में बोल रहे थे, हमको 2 मिला था और 2 हमने जाके दिल्ली से सेमीकॉन इंडिया 2025 में जो भूमि से फिर ला के आया। चिप लाया है। जी, मैं आपसे आपने एक बात कहा कि यहाँ माल सारा है, माइंस यहाँ पर है, क्या आप ये सोच रहे हैं कि ऐसा नारा लगाना कि यहाँ का माल यहीं बनेगा, रॉ मटेरियल, मेक इन उड़ीसा पॉलिसी, ऐसा सोच रहे हैं कि उड़ीसा का माल उड़ीसा में ही बनेगा, यहाँ से बाहर नहीं जाएगा? नहीं, बिल्कुल इसी आधार पर ही हम काम कर रहा हूँ। जैसे कम टू उड़ीसा, मेक इन उड़ीसा, मेक इन उड़ीसा कम टू उड़ीसा एंड मेक इन उड़ीसा, निश्चित रूप से पॉलिसी। इसी मेक इन उड़ीसा का करने के लिए तो हमने उत्कर्ष उड़ीसा नाम पर आज कर रहा हूँ। इसी आधार पर जो मेक इन उड़ीसा कॉन्क्लेव 2025 में हमने जो शुरू किए थे, जनवरी 28 और 29 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे, इसी आधार पर हमने आज देखिए जो देश के और दुनिया भर में जो बड़ा कंपनी है, जिसको आप बोलते हैं जिंदल परिवार को, JSW, JSPL, JSL, और सारी भाइयों ने कंपटीशन कर रहे हैं कि हम उड़ीसा में ही करेंगे, कलिंग नगर हो या हमारा अनुगुण में हो या जगतसिंहपुर या केंद्रापड़ा में। इसी आधार पर आपका जो टाटा, अभी टाटा ने उनका कलिंग नगर में और गोपालपुर में इसे प्रोजेक्ट को ला रहे हैं। अभी उनका एक मैंने गया था जो ग्राउंड ब्रेकिंग करने का टाइम में कलिंग नगर में जो हुआ था प्रोग्राम हमारा, इसमें से उनका एक प्रोजेक्ट का एक्सपेंशन का इनाग्रेशन हुआ और वहाँ को जो ब्लास्ट फर्नेस है उनको इनाग्रेशन करने के लिए वो कलिंग नगर में वो चिन्हित किया और वहाँ ही दुनिया का सबसे बड़ा ब्लास्ट फर्नेस जो एक है इंडिया बाहर में और दूसरा वर्ल्ड का सबसे बड़ा या सेकंड कहा जाता है, और कलिंग नगर में उनका इनाग्रेशन हमने किया है, अभी चालू हो गया। और उसी वजह से और एक भी प्लांट, वो जो मेस्को स्टील प्लांट था उसको तो टाटा ने ले लिया, वहाँ में से और 40,000 करोड़ का, 35,000 से 40,000 करोड़ का और भी एक प्लांट करा रहे हैं। मतलब टाटा उधर ज़्यादा कहाँ ना जाते हुए उड़ीसा में आ गए। और जैसे JSW फैमिली बोले, पोस्को बोले, और किसी का बड़ा कंपनी का नाम आप बोलोगे तो मैं निश्चित बोलूँगा, उसके साथ हमारा बातचीत चल रहा है या वो आने के लिए तैयार हो गया है। एक बार बताइए, नवीन पटनायक रहे 25 साल यहाँ पर मुख्यमंत्री, आपने जब टेक ओवर किया उनके बारे में काफ़ी उन्होंने विकास किया, ऐसे लोग मानते हैं, वो भी मानते थे। ऐसी कौन सी चीज़ वो नहीं की जो आप करना चाहते हैं, जो छोड़ गए, बिल्कुल भूल गए, वो उन्होंने कुछ नहीं, वो तो भूल गया था बहुत सारी। हमारा वहाँ का लोग काम करने के लिए काफ़ी वो स्किल वाला लोग है, उनका दक्षता है, लेकिन वहाँ इंडस्ट्री नहीं है काम करने का, वहाँ कोई सेंटर नहीं है। इसलिए लोग चला गए, कोई सूरत चला गया, कोई कोयम्बटूर चला गया, कोई दिल्ली या कोई आपका अबू धाबी होते हुए वो लोग बाहर चले गए। हम कैसे उड़ीसा में वो प्रोजेक्ट को करें तो वो फिर आ जाए और वहाँ भी हम नया स्किल के रूप में उसको ट्रेनिंग देते हुए काम करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी उनको मिल जाए। इसी आधार पर हमने भी एक उड़ीसा टेक्सटाइल के बारे में भी हमने पहले सोचे थे और टेक्सटाइल उड़ीसा टेक्सटाइल कॉन्क्लेव भी एक आ गया। हमने उनका जो उड़ीसा टेक्सटाइल कॉन्क्लेव किए उसमें से 33 कंपनी आए थे और साथ में तो हमने 300 कंपनी को बुलाए थे, लेकिन 33 कंपनी ने वहाँ MOU साइन किए और सम्मति प्रदान किए कि हम उड़ीसा में टेक्सटाइल अपैरल वो प्लांट को हम लगाएंगे। और उनका भी MOU साइन हो गया 7,800 करोड़ का। और कोई सारी कंपनी जैसे साउथ में और वेस्ट में, जैसे हमारा जो संबलपुर इलाका में, नॉर्थ में केउंझर में, और वहाँ भुवनेश्वर का
रीजन में उसको कराने के लिए 7,800 करोड़ का प्रोजेक्ट और लगा रहे हैं। MOU साइन हो गया और वो भी 7,800 रुपया इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लेकिन जो एम्प्लॉयमेंट जॉब क्रिएट कर रहे हैं उनका संख्या है 53,500। 53,500 हमारा नई जो लड़का लड़की जो पढ़ाई किए हैं उनको नौकरी भी मिला। वो एक अपॉर्चुनिटी जैसे नवीन जी ने उसको नहीं सोचा था होगा सही, क्योंकि उनका पिताजी ने वहाँ चौद्वार में किए थे क्या OTM किया था एक टेक्सटाइल का, वो भी बंद कर दिए। आपने उनके पिताजी का नाम लिया अभी, वो कहते हैं हमारे पिताजी के नाम पर जितनी स्कीम चालू की थी उनको बदल दिया, नाम बदल दिया आपने। मैंने उनको नाम कहाँ बदला? बदला ले रहे हैं क्या पिताजी? बीजू पटना का नाम पर तो हमने इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, हमने और कोई सारी जो पुरस्कार दिया जा रहा है ना वो बीजू पटनायक के नाम पर ही है, हमने बंद नहीं किए, वो बंद भी नहीं होगा। वो उनका हम बीजू पटनायक तो हमारा एक बरपुत्र था, इसी आधार पर हमने कभी उनको सम्मान करते हैं, उनके आधार पर भी हम जाते हैं, वो नहीं होगा। लेकिन बीजू बाबू ने जो इंडस्ट्रियलाइजेशन किए थे, जैसे OTM हो, कोई आपका शुगर मिल हो या स्पिनिंग मिल हो, या हमारा कलिंग नगर में में हमारा केउंझर में भी ये कि पिग आयरन का एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री बनाए थे, उसको तो जब नवीन बाबू आए वो तो बंद कर दिए सारी। उनका क्यों उनका पिताजी का प्रोजेक्ट को रखा नहीं? मतलब उनका इच्छा नहीं था, और दूसरे राज्यों में दूसरा काम करने के लिए सोचा होगा। तो आपका ये मंशा नहीं है ना कि बीजू पटनायक के नाम से कुछ है वो सब मिटा देंगे हम, ये तो नहीं करेंगे ना? नहीं, हम कहीं ऐसे नहीं करेंगे। बीजू बाबू जैसा है बीजू बाबू है, लेकिन कई सारे जो बीजू बाबू का नाम पर हो या किसी का नाम पर हो, कोई जो प्रोजेक्ट हो जो ठीक है उसको रखना ही है। और मुख्यमंत्री का नाम पर कोई स्कीम तो हमको भी करना पड़ेगा। मुख्यमंत्री कृषि सिंचाई योजना जैसे मुख्यमंत्री का इसी तो करना ही पड़ेगा, लेकिन उनका नाम को हम टोटली माने चेंज नहीं कर रहे हैं, और सही बात है। एक उन्होंने वो भी कहा कि RSS के जो शाखा है उसमें आपने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को अलाउ कर दिया, वो 25 साल से नहीं जा रहे थे, उसके पीछे क्या करना था? ऐसे कोई फर्क पड़ता है? RSS तो बढ़ रहा है, वैसे ही बढ़ रहा है। नहीं, वो झूठा बात बोल रहे हैं। देखिए, खाली भाजपा में नहीं है, जो लोग RSS में काम किया होगा स्वयंसेवक बनते हुए, और मैं तो स्वयंसेवक हूँ, आप भी स्वयंसेवक है, तो इसके फर्क क्या पड़ता है? आप इंडियन एक्सप्रेस में देश भर काम कर रहे हैं, मैं आगे सरकार का मुख्यमंत्री बना हूँ, हम सब स्वयंसेवक लोग हैं। लेकिन देखिए स्वयंसेवक का सोच क्या है, ये दुनिया का सबसे बहुत बड़ा अच्छा सोच है स्वयंसेवक का, जो देश के लिए दुनिया भर के लिए काम कर रहा है। सरकारी में जो लोग काम कर रहे हैं सारी लोग हैं, वो पहले से स्वयंसेवक ही है। पढ़ाई करने के टाइम में, नौकरी करने के टाइम में, आज भी वो लोग काम कर रहे हैं, वो स्वयंसेवक रहेंगे ही। और आज भाजपा में देखिए स्वयंसेवक लोग भी है, आप BJD में ढूंढे, देखिए BJP में बहुत सारे लोग हैं, वो स्वयंसेवक ABVP का लोग है, आप भी ABVP है, तो ABVP लोग आज भी BJD में है, कांग्रेस में भी है। वो कोई स्वयंसेवक हो या कोई ABVP का कार्यकर्ता हो, कहीं भी रह सकता है, लेकिन उनका सोच अच्छा हो तो बहुत देश के लिए, समाज के लिए वो अच्छा ही होगा। और हर पार्टी में भी रहना चाहिए, नहीं तो पार्टी भी इधर उधर हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपको भी जाना है। मैं तेरे से थैंक यू।